नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हावड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के एआई टूल्स का इस्तेमाल किया। सरनेम में गड़बड़ी होने पर शादीशुदा महिला वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मतदाता सूची से 54 लाख नाम हटाए जाने की जो ड्राफ्ट लिस्ट बताई जा रही है वो उन्होंने अब तक देखी ही नहीं। राज्य सरकार या टीएमसी को इसकी कोई आधिकारिक ड्राफ्ट लिस्ट नहीं दी गई है। ममता ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक तरफा तरीके से फैसले ले रहा है और इसमें राज्यों को भरोसे में नहीं लिया जा रहा। ममता बनर्जी का दावा तो यह भी है कि फोर्ट विलियम में तैनात सेना के कमांडेंट बीजेपी दफ्तर में बैठकर एसआईआर का काम कर रहे हैं। इधर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि अगर ममता बनर्जी के बयान से संविधान का उल्लंघन हुआ तो वो हस्तक्षेप करने से नहीं चूकेंगे। ये रिपोर्ट। ईडी रेड के बाद पश्चिम बंगाल में 48 घंटे तक चले हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद बीजेपी ने विवेकानंद जयंती के बहाने हिंदुत्व के हथियार को धार देने की कोशिश की, लेकिन ममता ने अगले दिन ही खेल पलट दिया। एसआईआर की खामियों का कथित सबूत लेकर मीडिया के सामने हाजिर हुई ममता बनर्जी ने अधिकारियों पर वोटर की आईडी ब्लॉक करने का इल्जाम लगाया, लाखों लोगों के वोट काटने का आरोप लगाया। एसआईआर को पश्चिम बंगाल की जनता के खिलाफ षड्यंत्र बता दिया। আমি আপনাদের একটা লিস্ট দেখাচ্ছি, পরে আপনাদের দিয়ে দেবে সৌম্য। এটা হচ্ছে একটা লিস্ট। ধরুন ডিইও ক্লিয়ার করেছে, ধরুন ডিএম ক্লিয়ার করেছে, ইআরও ক্লিয়ার করেছে, বিএলআরও ক্লিয়ার করেছে, কিন্তু লাস্টে একটা নাম রেখে দিয়েছে একটা জায়গা মাইক্রো অবজারভার হরিদাস সব, তারা বিজেপির দলদাস। তারা ক্রস করে দিলেই নামগুলো যেগুলো লগ ইন করেছিল সেগুলো সব ফেরত চলে আসছে। ইতিমধ্যে আমাদের কাছে খবর এসছে যাদের এমনকি হিয়ারিং এ ডাকা হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েক লাখ নাম লগ ইন করেছিল ডিএমরা, টোটালটাকে ব্লক করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। জঘন্য ষড়যন্ত্র। গণতন্ত্র হচ্ছে, নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের একটা গণতন্ত্রের উৎসব, কিন্তু সেখানে জনগণ ঠিক করবে কাকে ভোট দেবে, কাকে নির্বাচিত করবে, কাকে করবেন না। কিন্তু সেখানে ইলেকশন কমিশন ভোটের আগেই অর্ধেক লোকের ভোট কেটে দিয়ে তিনি নির্বাচিত সরকার ঠিক করে দিচ্ছেন। এই কৈফিয়ত তাকে দিতে হবে। मीडिया से मुखातिब हुई ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी होगी, भारतीय जनता पार्टी को लेनी होगी। आज পর্যন্ত 83 জন মারা গেছে, 84 মারা গেছে, মানে সকাল পর্যন্ত 4 জন কমিটেড সুইসাইড করতে গেছিল এবং 17 জনের ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট স্ট্রোক হয়েছে এসআইআর এর নোটিশ পাওয়ার পর। টোটাল প্রায় 103 জনের মতো হবে, 105। এর জমিদারি তো ইলেকশন কমিশনকে নিতে হবে, বিজেপি পার্টিকে নিতে হবে, দুর্যোধন দুঃশাসনদের নিতে হবে। এতগুলো জীবন তো বৃথায় চলে যাবে না। बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति पर सवाल खड़ा करने वाली ममता बनर्जी ने यह सवाल भी दागा कि जब चुनाव दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं तो फिर एसआईआर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहे हैं? असम में बीजेपी एसआईआर क्यों नहीं करवा रही है, और वो भी तब जब असम सरहदी राज्य है। ऑब्जर्वर इज नॉट अलाउड इन एसआईआर रूल। শুধু বাংলায় কেন, আসামে নয় কেন, ত্রিপুরায় নয় কেন এসআইআর, মণিপুরে নয় কেন, নাগাল্যান্ডে নয় কেন, মেঘালয়ে নয় কেন? এগুলো তো ইস্টার্নের সব বর্ডার। একমাত্র 4টে স্টেটে ইলেকশন হচ্ছে,
তার মধ্যে 3টে অপোজিশন স্টেট, সেখানে তুমি এসআইআর এর নামে টোটাল ভোট বাদ দিচ্ছ একতরফাভাবে এবং নিজেকে সুপারম্যান ভাবছো। ইলেকশন কমিশনকে আমরা রেসপেক্ট করি, বাট মনে রাখবেন সবার কিন্তু একটা সংবিধান মেনে চলতে হয়, নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। নিয়মের যদি উল্লঙ্ঘন হয়, সীমারেখা যদি পার করে যায়, জীবন্ত মানুষকে যদি মৃত দেখানো হয়, জীবন্ত মানুষের ভোটাধিকার যদি কেড়ে নেয় এ পলিটিক্যাল পার্টি, ওয়ান নেশন অ্যান্ড ওয়ান পার্টি, যারা স্লোগান দিয়েছিল না, ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, ওয়ান নেশন ওয়ান পার্টি, আর কোনো পার্টি দেশে থাকবে না, গণতন্ত্র থাকবে না, স্বৈরাচার থাকবে। আমি পরিষ্কার বলছি, একসাথে এক ঝাঁক নিয়ে যাওয়া মানে এটা অবৈধ, এটা কেউ গ্রহণ করতে পারে না, নিয়ম নেই, ফোর্সফুলি করলেও নয়, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। एडमिनिस्ट्रेशन दायित्व এটা দেখা। सत्ता और सिस्टम पर लोगों के वोट छीनने और संविधान को खतरे में डालने के इल्जाम से बेचैन बीजेपी की पलटन भी मीडिया में नामुदार हुई। दलील ये कि खामी लोकतंत्र में नहीं, खामी एसआईआर में नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की सरकार में, पुलिस और प्रशासन में है, जिसके कारण ममता बनर्जी मनमानी कर रही। लिहाजा इस बार बीजेपी बूथ की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, जहां ममता बनर्जी के समर्थक जनता का वोट ना लूट पाए। एसआईआर चल रहा है और हम लोग चिंतित है बूथ लेकर। ये सारे पश्चिम बंगाल की जनता जानते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान बूथ के भीतर क्या होता है। तो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, बूथ की सुरक्षा, इसको निश्चित करना है। बार एसआईआर को लेके इतना डर क्यों है? बार बार इतना सारा उसके पास अभी बीजेपी ऑफिस चला रहा है, कभी शुभेंदु अधिकारी कर रहा है, कभी अमित शाह जी का ऊपर आक्रमण चल रहा है, अभी फोर्ट विलियम में चला गया आर्मी के ऊपर। मतलब किसी का सम्मान नहीं है। एसआईआर ऐसा पूरा देश में चल रहा है, कोई जगह में कोई नहीं बोल रहा है, तो मुख्यमंत्री को इतना क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि उसका डर है। इस टाइम में एसआईआर में जो लोग 58 लोगों का नाम बाद गया है, क्योंकि 40 लाख का तो आसपास में हम लोग का डिफरेंस था, वो तो हम लोग कवर हो गया, 58 लाख हो गया, तो फिर जीतने का भी कुछ रास्ता है ही नहीं। देखिए, भगवान से ही मांगा कि जैसे आज से दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता जाता है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में जो रात चल रहा है उस रात की समाप्ति होगी और पश्चिम बंगाल में राम राज्य प्रतिष्ठा होगी। लेकिन मीडिया से रूबरू ममता बनर्जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया। ममता ने आरोप लगाया कि सेना के एक कमांडर बीजेपी दफ्तर में बैठकर एसआईआर का काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद भूचाल मचा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने यहां तक कह डाला कि अगर उनके बयान गैर संवैधानिक पाया गया तो वो हस्तक्षेप करने से नहीं चूकेंगे। আমি ওদের সম্মান করি, আমি সব ফোর্সকেই, কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট করব, আমার কাছে খবর আছে ফোর্ট উইলিয়ামে একজন কমান্ড্যান্ট এসআইআর এর কাজ করছে এবং বিজেপি করছে, বসে পার্টি অফিসের কাজ করছেন। প্লিজ আপনাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করব, এটা করতে যাবেন না। First, let me verify for myself what she said. That violates any constitutional proprieties. Certainly, I will intervene. भी कह सकते हैं ममता जी कवि है, ममता जी चित्रकार है, ममता जी खड़गपुर में पूरा साइक्लोन का जो गति है उसका जो अभिमुख है वही बदल दिया था। तो ममता जी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी बोल सकती है। ममता जी को बात को एड्रेस करने का प्रतिभा तो हम लोगों का किसी का अंदर में भी नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप को पश्चिम बंगाल की राष्ट्रपति समझती है। वो पश्चिम बंगाल को कोई अंगराज्य नहीं मानते हैं, वो मानती है कि वो ये एक अलग राष्ट्र है, एक अलग, ये सिर्फ कोई प्रदेश नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी हार के डर से संवैधानिक संस्थाओं के खतरे में होने का इल्जाम लगा रही, लेकिन जो इल्जाम लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी जड़ दिया। तमिलनाडु के गदालूर में एक स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में राहुल गांधी ने दावा किया कि सत्ता में बैठे लोगों के कारण लोकतंत्र खतरे में है।
In some of your recent posts, you have mentioned that the youth of the country, the students and the Gen Z will protect our country, will safeguard all the countries and will also safeguard the people. So what abilities or what plans we can do to really fulfill that roles in the future? One of the things that I have been talking about Yes. is the attack on our democratic foundations. Yes. India is a democratic country, Yes, sir. but today our democratic system is under attack. Democracy is voice. So democracy is the idea that you should have a voice, I should have a voice, all these people should have a voice, all those children in front of us should have a voice. So democracy is what gives India its voice. Yes. And I've been saying that our democratic structure is under attack. And so our voice, the voice of our people is under attack. And it is under attack by those in government, by the people who are actually running the government. They are attacking our election commission. They are attacking our different institutions. They are threatening people who don't agree with their ideology. So for that we need young people like you who are brave, who are confident and who are not scared of asking questions. ममता बनर्जी का इल्जाम है कि बीजेपी बंगाल का चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। लेकिन राहुल गांधी ये बात तब भी कहते हैं जब चुनाव नहीं होते। लेकिन राहुल जो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, अब इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को भी कहना पड़ रहा है। पूरा विपक्ष राहुल के इल्जाम पर मोहर लगाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।